So, Nidhi, like my first question, I always ask this question. So, what inspired you to become a filmmaker? Like, how your journey started? Oh my God. आई थिंक कुछ भी बाहर से इंस्पायर नहीं करता है। जो भी इंस्पायर करता है वो अपने अंदर से ही इंस्पायर करता है। स्पेशली आई विल से दिस फॉर मी, some unexpressed emotions, unfulfilled, complex things which we never say or which we never told to anyone, which we felt on a very deeper inner level, और वी फेल्ट हेल्पलेस अबाउट देम कि हम उन्हें सुलझा भी नहीं पा रहे हैं। आई थिंक दोज थिंग्स, वो बातें, वो इमोशंस, वो कॉम्प्लेक्स जिंदगी, वो इंस्पायर, मतलब मुझे तो लगता है उसने इंस्पायर किया होगा, पोएट्री ने इंस्पायर किया होगा। और वैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 7 और 8 आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, आई यूज्ड टू रीड लिटरेचर अ लॉट। तो आई यूज्ड टू recreate things, like I was very young and I was reading Crime and Punishment, और उसमें there is one character of Raskolnikov जो एक मर्डर करने के बाद एक पुल से गुजरता है कोर्ट की जेब में हाथ डालकर। एंड मैं जयपुर में रहती थी, तो जयपुर में उतने पुल नहीं है, पर मैं फिर भी छोटी छोटी पुलियाँ ढूंढ ली मैंने, और मैं सर्दी में कोर्ट में हाथ डाल के घूमती थी। एंड आई यूज टू फील लाइक आई एम इन that world, in that I'm Raskolnikov and I'm in the world of Crime and Punishment. So sort of I used to, when I used to read something, I tried to recreate certain things. I don't know what inspired me, but that I know that it's something from inside, nothing from outside. So, have you gone to film school? I went to film school for a brief time for a screenplay writing course. So, in FTI? But very later in my, I mean, very later in my time, I didn't go when I was young and 25. I used to work in many different sectors and NGOs and I don't know what not. And I used to write. I had made a film also for Films Division of India and some other places. And then I went to FTI. It was like a break for me from work. Brilliant. So, like looking back, like was it the best decision you make? Like there are a lot of aspiring filmmakers in their 2025, and they want to go to film school after their 12th, after their graduation. I don't know what works for. I mean, different things works for different people. Like Fastbinder started really early, and then he, I mean, uh, Nuri Salan started really late. So I mean, different things works for different people. It doesn't matter much. So let's talk about your film Satellite is of an Imaginary Movement. So it explores memory trauma. So what inspired the story? Again, memory trauma. Of course, I'll say it's partially autobiographical, but then हम लोगों का एक collective memory भी होता है as a nation, as a gender, as a sexuality. तो I think, of course, उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी अपनी जिंदगी से आई हैं। अगेन जो मैंने बोला कि समथिंग अनफुलफिल्ड, अनसेड इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट आर्ट। एंड या तो आई रिमेंबर मेरे पापा बहुत टूर पे रहते थे, तो आई यूज्ड टू स्पेंड, एंड मैं बहुत मतलब हम लोग बहुत ऐसे 1 बीएचके टाइप घर में रहते थे, तो उसमें पानी भर जाता था जब बारिशें होती थी। तो मुझे याद है कि उस फ़िल्म का जो सबसे पहली चीज़ मैं रिक्रिएट अपनी ज़िंदगी से करना चाहती थी, मेमोरी से। आई डोंट नो व्हाई वी हैव दिस नीड टू रिक्रिएट फ्रॉम आवर पास्ट और फ्रॉम आवर मेमोरी। बट या कुछ पार्ट उसका वो वहाँ से आया। फिर वो तो एग्ज़ैक्टली सीन की तरह आया। बाकी जो चीज़ें हैं, वो इमोशंस जो मैंने कभी ना कभी, कहीं-कहीं महसूस किए होंगे, आई ट्राइड टू रिक्रिएट
them, channelize them, and try to understand them through the while I was making the film. I think I tried to answer your No, no, question. that's great. So, like, was there any influence, like, any influence from the films? Because I can see a lot of Tarkovsky, like, Oh, I love nostalgia, that. nostalgia. Really? Yeah, yeah. The candle scene, Nuri's. The candle we have in Nuri, we have in Tarkovsky also. We have in Apichat Pong also. I mean, we have candles all over the वर्ल्ड यार वो कैंडल तो वो तो हमारे घर से ही आया था क्योंकि वी वर इन आई मीन दैट होल सीन आई इमेजिन इन वाटर एंड समहाउ वी कुडंट यूज वाटर दैट डे इन दैट लोकेशन बट आई रिमेम्बर कि अंधेरा हो जाता था और थोड़ा-सा डर भी लगता था और फिर मम्मी हाथ में कैंडल लेकर आती थी, वो देवी जैसी लगती थी। Or, like, it's quite a non-linear structure. या So, like, was it difficult to like maintain the crew or maintain like your vision? You are a director, so how did you communicate your vision to other people? इट वाज़ प्रिटी हार्ड एक्चुअली, इट वाज़ प्रिटी हार्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें थी व्हाइल शूटिंग आल्सो टू टेल एक्टर्स आल्सो एंड सबसे ज़्यादा मुश्किल एडिट पर होता है क्योंकि यू फ़ील कि यार कोहेरेंस नहीं चला जाए। इट इज़ अ non-linear structure, but still you want to maintain certain coherence. You want to maintain certain fluidity. You want to maintain कि ऐसा नहीं लगे कि एक फ़िल्म में 100 फ़िल्म्स देख रहे हैं। तो you have to maintain all that कि वो oneness रहे फ़िल्म की। तो it was pretty hard and I also took म मुझे याद है कि हम लोग जैसे एक्टर से भी बात कर रहे थे और बहुत बार मेरा बस ये था कि 2 ही चीज़ करनी है कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ धीरे बोलना है और एग्ज़ैक्टली बैठे रहना है और उधर देखना है, दैट्स इट। देयर वाज़ there was nothing. I mean, we talked also about our lives. I listened to the actors lives. I told them about my life and experiences which were similar to that incident, but when we were on set, then yeah, it was pretty difficult. But then edit is the, I think, main thing for a film like this. Edit and music can save all the non-linear films. Totally, totally agree. And आपने काफी सिनेमेटोग्राफी भी चेंज की है क्योंकि मैंने सुना कि और क्योंकि visually it's a really strong film. And like, how was the process of working with different Well, I cinematographers? didn't have any money when I was making this film. I didn't have any money. I started to make this film with my own money. और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कितने पैसे मैं लगाने वाली हूँ और कितने पैसे लगने वाले हैं। तो आई डिडन्ट हैव एनी बजट। तो मैंने उसको वैसे भी 3 पार्ट्स में शूट किया। तो जब जितना जो पैसा हो गया, आई शॉट इट। तो फिर क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम फ़िल्म मेकर हो एंड देन आई हैव सेड इट 1000 टाइम्स दैट येस सेट्स आर patriarchal। तो लोग चले जाते हैं, दे डोंट टेक यू दैट सीरियसली कि पता नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है क्या वो भी नहीं समझ में आ रहा और इसका प्रोसेस भी थोड़ा अजीब-सा है बिकॉज़ मैं जो लोकेशन था उस पे बहुत जल्दी चली गई थी एंड आई स्पेंट a long time on that location. I think I spent that was just one house, so it was unusual to spend like 3-4 months in one house, which is almost a ruin. But yeah, I spent a lot of time on the location. So तो या आई वाज़ जस्ट एक अगर चला गया कोई सिनेमैटोग्राफर तो दूसरा आ गया बट आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट माय विजुअल्स, अबाउट माय लैंग्वेज एंड अबाउट माय कलर्स कि जो भी आया वो फ़िल्म का कोहेरेंस उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ। Also कि ब्लू कलर काफी ज्यादा इसमें टोन एज अ फिल्म काफी ज्यादा था. Was it या planned? I love blue and I used to paint a lot. So I'm not painting for 10 years, past 10 years, but all my paintings are blue. Blue does something on our souls, I think.
I mean, every color does something differently on our souls, but I think blue is a very mysterious color. So, for the film like this, of course, blue is the obvious choice, which is ambiguous and yeah. And what was the casting process and working with the actors? Casting, everyone was a theater actor or non actor mostly. And I don't know, but yeah, I meet people, I meet a lot of people, and then शायद मैं सिर्फ 2 चीज़ें देख रही थी, लुक और ये कि कौन कितना नेचुरल लगता है उस तरह से, कौन कितना लाइक फॉर माय लीड एक्ट्रेस आई टोल्ड हर कि नहाना मत 7 दिन 8 दिन, तो शी डिड दैट एंड with that character it goes well. And I told my the lady who played the elder women, I told her also to not to wash her hair for some time, and it she was shocked, but then she followed it. uh, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें. You were talking me about inspirations. I want to go back Sure, sure, on sure. that. So आई थिंक इंस्पिरेशंस तो होते ही है नोइंगली अननोइंगली. और आई लव तार्कोवस्की एंड आई लव अपचातपुर. तो मुझे लगता है कि जो भी फिल्म्स बनते हैं उनमें जो भी सिनेमैटिक लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं से बोरोड है. और मे बी माई एंड आई tried to understand Tarkovsky's language. So yeah, maybe I and Apichatpong's lighting and my cinematic language and Apichatpong's cinematic language is very different because Apichatpong's camera is like Zen Buddhism. He is not moving camera anywhere. He's just seeing from a distance, and he's not trying to go close to the character and anything. And my camera moves everywhere. But yeah, I know. तो आई थिंक आई डोंट नो नोइंगली अननोइंगली बट या कुछ इंस्पिरेशंस तो होंगे ही, पर थैंक गॉड कि वो सही जगहों से हो. बिल्कुल बिल्कुल. और वाई टारकोव्स्की क्योंकि काफ़ी सारा साउंड वाटर का था, और नॉस्टैल्जिया में काफ़ी सारा साउंड वाटर को था, इसलिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन. यार मैंने साउंड के साथ मेरे जो साउंड डिजाइनर थे गौतम नायर, ही डिड अ फैबुलस जॉब. एंड हमने साउंड के साथ कोशिश की कि एक अलग नैरेटिव बनाएं. जो भी तो फिल्म में बहुत कुछ कहा नहीं जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि एक्चुअली ये हो रहा है. वी आर नॉट ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस एंड आंसर्स टू एनीवन और टू द वर्ल्ड. तो उसमें बहुत सारे स्पेसेस खाली थे. वो जो फ़ोन आता है, वो किसका आता है, वो कौन है? तो वी मेड अ डिफरेंट स्टोरी with the sound, a parallel narrative with the sound, which was also undefined. So we thought कि क्योंकि ये घर में बंद है और हम नहीं जानते कि ये घर कहाँ पर है, तो ये किस चीज़ का सपना देखती होंगी? तो शायद ये समुद्र का सपना देखते होंगे. या लेट्स से कि दे हैव अ लवर, तो वो लवर है तो वो यहाँ एग्ज़िस्ट क्यों नहीं करता? वो आता क्यों नहीं है? तो वी थॉट कि मे बी he's he works on a ship and he's away for long time and maybe वो डूब गया है and that's why he is absent. So it was a parallel narrative for us and we never tried anyone to explain it because we and तो हमें ये तो पता था कि वो कहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पानी है उसकी आवाज़ तो असर करेगी लोगों पर. तो आई डोंट नो तारकोव्स्की की फ़िल्म्स में तो यार पानी की आवाज़ें आई मीन वो सोल को धो सकती हैं. हमारी फ़िल्म में पानी की आवाज़ क्या करती है मुझे नहीं पता, बट नॉट दैट फॉर श्योर. और व्हाट वाज द लाइक पोस्ट प्रोडक्शन वर्क लाइक, क्योंकि आप एशियन फिल्म फंड जीते थे, apparently you are the first woman who won an Asian cinema fund, so what was your experience there? अरे ये पहली बात तो ना मुझे बहुत सैड लगा एक्चुअली कि व्हाई आई एम द फर्स्ट. मतलब इतना ये तो खैर सब जानते हैं कि रिसेंटली परसेंटेज बढ़ा विमेन का सिनेमा में. उसके पहले 3% थे, 2% थे, और अभी शायद पिछले साल सम 24%.
आफ्टर आफ्टर इयर्स। तो वो जो कल्चरल वेल्थ होती है आपके पास वो भी नहीं है एज़ अ वुमन, और रिसोर्सेज़ भी आपके हाथ में उस तरीके से नहीं थे। तो इट्स गुड दैट आई गॉट दिस these Asia Cinema Funds. It helped me also and it opened a door also for me. और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंडिया में भी हो, इंडिया के बाहर तो हैं, फिर भी दे आर नॉट इनफ दो। बट हाँ, बहुत ज़बरदस्त था बाहर जाके काम करना और पूरे दुनिया के आर्टिस्ट से, फ़िल्म मेकर्स से मिलना। इट वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और स्पेशली कोरिया इसलिए क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब हमने कुछ अलग तरह के फ़िल्म्स देखना शुरू किए थे ना, तो दे वर ईरानियन फ़िल्म्स एंड कोरियन फ़िल्म्स। तो वो भी था। तो हाँ, मैंने थोड़ा इंडस्ट्री देखा वहाँ का। तो फिर बाद में जब बुसान गई थी और डिफ में भी प्रीमियर हुई थी तो कैसा रिस्पॉन्स था? अलग दिखा रिस्पॉन्स ऑडियंस का, मतलब दूसरी दूसरी कंट्री? कोरिया में हमारे सारे शोज़ फुल थे और आई थिंक क्योंकि मैंने और भी फ़िल्म स्क्रीनिंग्स अटेंड किए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो फ़िल्म स्क्रीनिंग जो हमारा क्यूएनए था, वो लॉन्गेस्ट था। क्योंकि शायद हमारे फ़िल्म में इतना सारे, बिकॉज़ वी वर नॉट ट्राइंग टू गिव आंसर्स और डेफिनिट सॉल्यूशंस टू द पीपल, तो उनके उन बट आई थिंक वी गेव सम क्वेश्चंस टू थिंक ऑफ। तो मैंने देखा कि लोग छोटी-छोटी बातों को नोटिस कर रहे थे कोरिया में स्पेशली, और मुझे ये महसूस हुआ कि अरे आई हैव अ लॉट ऑफ वुमेन ऑडियंस इवन इन बाहर। तो तो हाँ, ऑडियंस थे। ऑफ कोर्स कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शैडोज़ इतने सारे क्यों हैं? तो देयर आर शैडोज़ इन माय फिल्म बट दे वर अनकॉन्शियस बिकॉज़ इट इज़ माय स्टाइल। तो शायद कई बार आप उतना नहीं सोचते हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि इतने सारे शैडोज़ क्यों थे? और इतनी हवा क्यों थी? बिकॉज़ किसी ने मुझे कहा कि आपके फ़िल्म में हवा का प्रेज़ेंस दिखाई देता है। अ, पर्दे बहुत हिल रहे थे। तो आई मीन ऑल दोज़ क्वेश्चन्स केम फ्रॉम कोरियन ऑडियंस एंड आई वाज़ थिंकिंग कि दे आर रियली, आई मीन दे आर रियली सिनेफाइल्स। अ, डिफ में क्योंकि इंडियन ऑडियंस था, तो बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म किसी को रुला सकती है। बट देयर वर सम 15-16 गर्ल्स हू वर क्राइंग। तो जो मुझे लग रहा था कोरिया में भी कि अच्छा, शायद मेरा ऑडियंस बहुत सारा वुमेन है। तो जब मैंने वहाँ देखा डिफ में, तो मैंने देखा कि लड़कियाँ रो रही हैं एंड देन बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारे अ, जिन्होंने फ़िल्म देखी थी वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वी आल्सो फील एंग्ज़ायटी। और मुझे ध्यान है प्रत्यूष हू इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हॉलीवुड रिपोर्टर, ही वाज़ मॉडरेटिंग द सेशन एंड ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट कोहेरेंस एंड नॉन-लीनियर फ़िल्म एंड आई ट्राइड टू आंसर हिम। देन ऑडियंस से कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नॉन-लीनियर नहीं है, या एक्सपेरिमेंटल नहीं है, हमें तो सब समझ में आ रहा था। इट्स परफेक्टली कोहेरेंट। और मुझे लगा कि ठीक है, कि शायद वो जो इमोशन है वो क्योंकि उनके लिए वर्क कर रहा था। तो वो कहानी नहीं, मतलब थैंक गॉड, बिकॉज़ आई एम वेरी, मैं इस बात के थोड़ा-सा खिलाफ हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि फ़िल्म्स कहानी बनाने का मीडियम है, तो मुझे लगता है कि वी आर रिड्यूसिंग सिनेमा टू, I mean, stories are different medium, cinema is a different medium. We cannot reduce cinema just to the stories. तो मुझे लगा कि यार थैंक गॉड कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं कि दे फेल्ट द इमोशन, और वो इमोशन जो था वो उन्हें हिट किया, और उस इमोशन वो एक इमोशनल कोहेरेंस बना रही थी। जो जो इमोशन की वो बात कर रही थी, मेरा फ़िल्म डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी, वो उनको महसूस हो गया। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी, मतलब उम मेरे लिए शायद इससे अच्छा कुछ नहीं था कि मेरे ऑडियंस से मेरी इतनी सारी बात हो पाई। ओह ओह, ग्रेट ग्रेट। ऑल्सो द लाइटिंग पार्ट, क्योंकि एक था कलर ब्लू, एक ऑरेंज का भी कलर था जो भी प्रेजेंट था फिल्म में। यार मोस्टली फ़िल्म ना 90s में, बल्कि अर्ली 80s में सेट है। तो उस वक़्त भी ना ये वाले टंगस्टन बल्ब्स आते थे।
और जब लाइट चली जाती थी तो हमें मुझे याद है हमारे घर में या तो कैंडल्स होते थे या फिर एक और चीज़ होती थी व्हिच आई एम फॉरगेटिंग व्हाट वाज़ दैट बट सम गैस बर्नर। तो तो ये तो और प्लस मॉनसून है फ़िल्म में, मतलब फ़िल्म है घर के अंदर ही बट मॉनसून है। तो मॉनसून में नेचर का एटमॉस्फेयर का कलर ब्लू होता है और क्योंकि लाइटिंग टंगस्टन ही होती थी, तो वी हैड जस्ट दीज़ 2 कलर्स व्हिच perfectly goes well with each other also. सो कहीं पे स्क्रीन हो रही है अभी? मैंने तो क्या हुआ कि मैं ये फ़िल्म कर ही रही थी, देन आई गॉट अनदर ग्रांट फॉर समवेयर some other place and then I don't know, I am still processing that, I'm still working on that film, so I'm just trying to छिपा the information, not really, but yeah. So I got this second grant from Venice and तो मैं इस फ़िल्म के साथ पूरा काम कर पाती उसके पहले मुझे दूसरा फ़िल्म बनाना शुरू करना हुआ व्हिच इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी लकी। तो अभी मैंने कहीं भेजा नहीं है स्क्रीन के लिए बट हाँ, अभी हम लोग भेजना शुरू कर रहे हैं बिकॉज़ आई जस्ट कंप्लीटेड द शूट फॉर द सेकंड फ़िल्म एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। सीक्रेट ऑफ माउंटेन्स, करेक्ट? Great, great. So, and your favorite films and filmmakers, can you recommend few? माय फेवरेट फ़िल्म्स, ऑल द फ़िल्म्स बाय तारकोव्स्की, ऑफ कोर्स मिरर, ऑफ कोर्स मिरर। अम, मुझे लगता है कि मैं जब से मैंने फ़िल्म्स देखना शुरू किया है, से 20 इयर्स से, मैं रिपीटेडली सेम फ़िल्म्स 10 साल, 15 साल से देख रही हूँ। मैं कुछ भी नई फ़िल्म शुरू करते हुए मुझे डर लगता है। मुझे लगता है मैं अंकल बूमनी पिछले 10 साल से 10 या 12 साल से लगातार देख रही हूँ। ट्रॉपिकल मेलोडी में अभिषेक बच्चन की फ़िल्म, वो मुझे लगता है मैं हर महीने उसको देखती हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी देखना बचा हुआ है। तो आई थिंक फेवरेट फिल्म्स तारकोव्स्की की मिरर, नॉस्टैल्जिया, स्टॉकर, अभिजात की अंकल बूमनी, ट्रॉपिकल मेलोडी, सिमेट्री ऑफ स्प्लेंडर्स, व्हाट एल्स? बेलाटार आल्सो आई थिंक मूव्स मी अ लॉट, मतलब वो जो बात है ना कि यार आलू छीलना भी इतना सुंदर दिख सकता है, योर एवरीडे लाइफ। आई थिंक या जैसे हवा है इवन, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तारकोव्स्की और बेलाटार ने हमें सिनेमा में नेचर दिखाया है, कि वो महसूस होता है। तो हुँ, So, any Indian filmmakers? any इंडियन फ़िल्म्स? उम, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है निशांत है श्याम बेनेगल की, क्योंकि जब मैं मतलब उसने मुझे ना बहुत सारे सवाल दिए थे, निशांत ने। अम, ऑफ़ कोर्स पाथेर पंचाली, मैंने मतलब मुझे लगता है मैं जब भी देखती हूँ, तो मैं जब भी दुर्गा मरती है, मैं हर बार रोती हूँ। और अंतरीन, मृणाल सेन की अंतरीन, और 36 चौरंगी लेन। तो जब मैं बड़ी हो रही थी और हमारे घर में एक ही सीडी थी, तो हाँ, एक ही शायद सीडी थी, आई डोंट नो कहाँ से आई थी, पर वो 36 चौरंगी लेन की सीडी थी। तो मैं हर बार स्कूल से आके या कॉलेज में थी मुझे याद नहीं, पर हर बार आके बार-बार 36 चौरंगी लेन देखती थी। और उसमें एक बहुत बूढ़ी टीचर हैं जेनिफर केंडल जो अकेले रहती हैं और वो अकेले खाना खाती हैं, अकेले अपने लिए शॉपिंग करती हैं, टीवी देखती हैं, बिल्ली पालती हैं और I used to feel like her. I was very young and she was very old in that film and I used to feel like her. So, ma'am, my last question, like, आपको पता है, there are a lot of aspiring filmmakers in India. So, what advice would you give to them if they want to make the film? Independent Make filmmaker. yeah, make the film. Don't worry about the cameras. Don't worry about the कितने सिनेमैटोग्राफर्स चेंज होंगे या बनेगा, नहीं बनेगा, कितना बनेगा, शायद आधा-अधूरा बनेगा, शॉर्ट होगा, मिड लेंथ होगा, लॉन्ग होगा, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। क्योंकि ना मार्केट से जिन फ़िल्म्स के लिए पैसा आता है, वो शायद वो फ़िल्म्स कभी भी नहीं होंगे जो एक आर्टिस्ट बनाना चाहता है।
जो मतलब हम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं, हम सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो फ़िल्म्स बनाने के लिए I think we are not equipped as a commercial setup in a commercial setup. तो वो फ़िल्म्स तो हमें खुद ही बनानी होंगी और या जो भी फ़िल्म्स आपका मन है वो कैटेगराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हैंडीकैम से, स्टिल कैमरा से, फ़ोटोग्राफ्स से, जिससे भी आप बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। दैट्स इट और तो कुछ मतलब और पोएट्री पढ़नी चाहिए।